Now is this particular balance part clear? Okay, now each of the three phase generators can be connected to one of the three phase, मतलब लोड जो भी हम कनेक्ट कर रहे हैं तो एक आइडेंटिकल लोड पे कनेक्ट कर सकते हैं. तो VA है तो इट इज कनेक्टेड टू सम लोड, VB है इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सम लोड, एंड VC है इट इज कनेक्टेड थ्रू सम लोड. नाउ यू नो कि ये whatever generated voltage we are having it is replaced by an angle of 120. Now current flowing through each load हम एक कॉमन मार्क कर सकते हैं that I is equals to V by Z if you want to find out. Okay, now current flowing ये है हमारा simple. I have marked this VA phasor. VA phasor whatever that is being generated उसको हमने एक reference mark कर लिया है. We know that whatever VB that was generated it was 120 degree phase displaced. तो ये है मेरा VB and this is my VC. ठीक है. Same way, if I need to write out my current value, अगर मुझे एक load दिया गया है, you can see that it is load का value same है. That means what? My load is a balanced load. Whatever impedance or whatever what we are having, it is having a balance condition. Z is equals to Z angle of theta, Z angle of theta, and Z. That this means what? All the three phase जो भी phases में load connected है, that is a balanced load. Fine. So what we'll do, we'll find out the current. IA. तो IA है तो IA कहाँ पे है? It is flowing through my first part, first phase. तो VA है तो यहाँ पे क्या? V divided by Z. तो what is my V value? VA का value क्या है? V divided by angle of 0 degree. Fine. So what my final value comes out is I angle of minus theta. ठीक है. The same way you can find out IB and IC. This is IC. ठीक है, because it is minus 240 degree. This is some small printing mistake. You can find it out. It is minus. It is IC angle of V angle of minus 240. So what my final value? यहाँ पे V by Z इन्होंने directly I दिया है, इसीलिए here it comes out I angle theta, I angle minus 120 minus theta, and I angle minus 240 minus theta. ठीक है. So now this is your simple balance condition. I'll show you what is the balance condition shown. ये है आपका balance. This is what a Y connected generator supplying a Y connected load. Can you see this? Y connected generating part है यहाँ पे. Generator होगा तो whatever induced EMF हमें जो मिल रहा है तो it is represented by EAN, EBN, ECN. ये है हमारे terminal voltages यहाँ पे. So यहाँ पे एक description दिया गया है. For balanced load, the terminal voltage VAN, VBN, and VCN. So what are this? These are my terminal voltages, and my phase voltages that are being generated at the load station. Whatever at the load station we are obtaining, that is termed as my phase voltages. तो ये है मेरा VAN, this is my VBN, and this is my VCN. ठीक है. ये जो connection है दिया गया, this is ZL, and this is ये पूरे जो भी मेरे connections दिए गए हैं, this is ZL, ZL, and ZL. This is my load connected. ठीक है. Y connected generator supplying a Y connected load. अभी इसका brief description हमें नहीं पढ़ना है. Whenever we will go to the generator part, we will study कि actually what this figure represents. Fine. So ये आगे हम लोग to the Y connected load. यहाँ पे वही part दिया गया था कि how are you going to connect your load and your generator together. सिंपल है. VA VB दिया, दिस इज इन माय स्टार कनेक्शन. ये जो लोड कनेक्टेड है वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज अ बैलेंस कंडीशन, तो दिस इज आल्सो कनेक्टेड इन माय स्टार पार्ट. नाउ वी कैन नॉट कनेक्ट अ नेगेटिव और द ग्राउंड एंड ऑफ अ सिंगल फेज जनरेटर एंड लोड टुगेदर, सो दे कैन शेयर अ कॉमन रिटर्न न्यूट्रल. ठीक है. वी कैन कनेक्ट दिस पार्ट, राइट, सो दे कैन शेयर. नाउ ये जो यहाँ पे हमने करंट का जो वैल्यू लिया है, तो सिंपली वी कैन राइट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार कनेक्शन, आपको इतना पता है कि आई न्यूट्रल जो भी फ्लो हो रहा होगा, वी कैन से दैट इट इज IA plus IB plus IC. Presently we are not focusing on this derivation. It is of no use right now. ठीक है. We'll simply come to the point कि what is my connections, what is my हम लोड को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम सोर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. वी कैन कनेक्ट योर सोर्स और योर लोड इन योर स्टार और इन योर डेल्टा. तो अभी वही हमें आगे बढ़ना है. सो बेसिकली व्हेन यू टॉक about in a balanced condition the neutral is unnecessary, so it is of no point. Now एक चीज जो हमने आगे पढ़ी थी यहाँ पे, what we had studied was a phase sequence. ये वाला phase sequence. तो अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन पे आप कैसे लिखोगे. अगर ये डेफिनेशन लिखना है तो आपके पास डेफिनेशन क्या है. A phase sequence is the order in which the voltage in the individual phases reaches its peak value.
अब पता चला आपके पास आगे एक पॉइंट है, आपके पास एक वेव फॉर्म है, ये वाला पार्ट। फेज सीक्वेंस कैसे होगा? द ऑर्डर और द सीक्वेंस इन विच द voltages in the individual phases reaches its peak value. That means what? अभी हमें यहाँ पे इतना पता चल गया ये वाले पार्ट से that VA, VB and VC. That means what? A, B and C. The phase sequences of the order of A, B, C. Why? Because A is reaching its peak value for the first, then your B is reaching its peak value, and then after your C is reaching your peak value. I hope this particular point is clear to you people. Hello? Hello? Anand, is this particular point clear to you people? Hello? हाँ, Ananda? हाँ, so this is my positive phase part. Now coming to the another part. ये है कौन सा? हमारा negative phase sequence. What do you mean by negative? तो ये पता चल जाए A, C, B लिखा है. That means what? My phase A is going to reach its peak value first. उसके बाद मेरा phase C जाएगा and then my phase B. Okay, now you are clear कि ये कैसे हो रहा है? I hope this particular part is very much clear कि हम ये कैसे derive कर रहे हैं, मतलब phase sequence आपका order. Okay, now coming to the next part. I guess you people are very much aware of what is my line voltage and what is my phase voltage. Phase quantities and line quantities, you people are very much aware of it. Are you aware of that? हाँ. So basically when you talk about connection types, तो connection types in three-phase circuit अगर हम बात करें तो we have two connections. One is my delta connection and one is my Y connection, or you can say a star connection. ठीक है? Now each generator and each load can be either a Y or delta connection. ठीक है? It can be a YY, मतलब स्टार स्टार कनेक्शन बोल सकते हैं कि स्टार डेल्टा हो सकता है, बने हैं स्टार डेल्टा हो सकता है, डेल्टा स्टार होता है. Any number of Y delta connected element may be mixed in a power system. So it is not necessary कि अब जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो we have examples related to कि if suppose I'm having a star connected source and a delta connected load, तो उसमें हमें power का value चाहिए होगा. So we have numerous examples over there. Fine. Now can anyone tell me ki what is my phase quantity and what is my line quantity? Can you see this part? What is this connection known as? This connection is known as your star connection and this particular connection is known as your delta connection. तो यहाँ पे आपके पास क्या है? You simply have this phase A, you have phase B and you have phase C. ठीक है? Now the very first basic point to be noted over here will be कि जब आप स्टार कनेक्टेड नोट डाउन कर रहे हो, दिस न्यूट्रल इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट? हेलो, प्लीज एनीवन रिस्पॉन्ड ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग हो यहाँ पे. हेलो, हाँ आप सुन रहे हो तो मुझे भी थोड़ा तो इंटरप्शन दो कि भाई हाँ यू पीपल आर देयर. व्हाट डज दिस न्यूट्रल पॉइंट इंडिकेट? व्हाट डज दिस न्यूट्रल पॉइंट इंडिकेट? Can I say that this neutral point is actually nothing but you can say that this is a ground point, a ground potential. So whenever neutral wire, ठीक है? So whenever you are connecting any star, जब भी आप star connection का देख रहे हो ना, तो see कि आपका जो phase का first point है, phase का positive, तो ये है मेरा positive, तो neutral के साथ मेरा negative point connected है, ठीक है? सेम थिंग अगर मैं फेज बी का देख रही हूँ तो फेज बी मेरा पॉजिटिव यहाँ पे, मेरा नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे. सेम थिंग फॉर माय फेज सी. ठीक है? सी पॉजिटिव यहाँ पे एंड नेगेटिव यहाँ पे. सो ऑल माय नेगेटिव्स आर कनेक्टेड टुगेदर. इज दिस क्लियर? दिस इज द मेन पॉइंट. कभी यहाँ पे मिस्टेक मत करना, पॉजिटिव नेगेटिव ये मिस्टेक मत कर देना, ठीक है? सो व्हाट आई कैन से इज कि अगर ये मैं VAN रिप्रेजेंट कर रही हूँ, VBN, VCN, तो VAN, VBN, VCN को मैं क्या कौन सी क्वांटिटी बोलूंगी? फेज क्वांटिटी बोलूंगी या लाइन क्वांटिटी बोलूंगी? फेज क्वांटिटी, ठीक है? सो whenever you are representing VAN, VBN, VCN, those are represented as your phase quantity. अगर मुझे दो लाइन के बीच में चाहिए तो it is VAB, VCB, VBC and one will be VAC. तीन हमारी लाइन क्वांटिटीज होगी, ठीक है? सो
what is my phase? Voltage and current in a given phase, voltage between line and the current between line connected to the generator. So this is my line quantity, this is my line quantity. ठीक है, see we are simply एक अभी y connection को इन्होंने elaborate कर दिया है. The same thing whatever you are having in the book. ये देखो, ये है simple सा. Fine. Now when you are studying this y connected load, तो y connected load में हमें क्या करना है? To find out the relation between line voltages and the phase voltages. ठीक है. So what we assume is कि हम positive phase sequence assume कर रहे हैं. ठीक है. तो अभी हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं? सिंपल, ये एक स्टार कनेक्शन दिया गया है मेरे पास. तो स्टार कनेक्शन में है क्या? तो VAN, VBN, VCN. ओके, सो VAN से हमारे पास क्या है? वन करंट इज फ्लोइंग, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया IA, एक करंट को रिप्रेजेंट कर दिया IB, एंड वन करंट इज रिप्रेजेंटेड एज IC. व्हाट आर माय लाइन वोल्टेजेस? माय लाइन वोल्टेजेस आर VAB, ठीक है, VBC एंड द नेक्स्ट वन इज VCA. ओके, नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि मेरा VAN है, तो VAN को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? V सम एंगल ऑफ थीटा. We are assuming that this particular voltage is on your reference axis. ठीक है, उसका एक डायग्राम भी होगा. Let's see. हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम होगा. See this part. Is this visible to you people? ये दिख रहा है अभी आपको? हाँ. So what you can see is कि this is your VAN. This is on your reference axis. This is your VBN minus 120 degree, and this is your VCN. ठीक है. Now what you need to find out is I want my VBA, line voltage, VBC and VCA. तो अभी हम करेंगे क्या? ये हो गया सिंपल सा VAN, VBN, VCN मिल गया मुझे. सी, इसको हमने यहाँ पे आपके वो वाली बुक में रिप्रेजेंट नहीं किया है, बट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो VAN को रिप्रेजेंट किया है VP एंगल 0, VBN को रिप्रेजेंट किया है सिंपल, जब हमने ओमेगा साइन ओमेगा माइनस थीटा माइनस 120 डाला था, तो उसको हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज माइनस 120 डिग्री. जब हम VCN की बात कर रहे हैं, तो वो है VP माइनस 240 डिग्री. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस VP? इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ योर फेज वोल्टेज. ठीक है. ओके, नाउ the line voltages at the load terminal in terms of phase voltages are found out by simply applying your KV, मतलब Kirchhoff's voltage law से हम डायरेक्टली. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर मुझे VAB फाइंड आउट करना है, तो VAB को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, कैसे? कैन यू अप्लाई योर KVL ओवर हियर? ये वाला लूप हमारे पास, सिंपल सा ये वाला लूप जो अगर चल रहा है, व्हाट विल बी दैट? VAB. See, here it comes out to be final. एक simple equation हमारे पास दिया गया है that VAB is equals to VAN minus VBN. ठीक है. How can you apply करके बोलो मुझे एक बार दिखा दो. Sweetie, can you apply KVL over here? चलो जल्दी बताओ. सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ से ये वाला लूप चाहिए मुझे. Ananta, apply the KVL, find out what is VAB. हाँ तो बताओ ना. VAN okay, तो final what comes out to be is VAB is equals to VAN minus VBN. ठीक है. अभी इसका हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट पे हम जंप करते हैं. देखो, तो वोल्टेजेस मेरे क्या आ रहे हैं? सिंपल से अगर हम यहाँ से देखें तो VA, हम N ना भी लिखे तो चलेगा. VAB is equals to VA minus VB. So what is my magnitude and angle of VA? तो ये है V एंगल 0 डिग्री. यहाँ पे मेरा VB का एंगल क्या था? माइनस ऑफ V एंगल माइनस 120 डिग्री. ठीक है. अभी ये मेरा कौन सा फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है? उसको ये जो भी है उसको हम एंगल और मैग्नीट्यूड था उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फाइनल वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी इज VAB is equals to √3 of V angle of 30.
आज का असाइनमेंट आपके पास ये होगा दैट व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग योर स्टार कनेक्टेड लोड, तो स्टार कनेक्टेड लोड में यू नीड टू फाइंड आउट, ये पूरा कैलकुलेशन करो कि वी ए बी इक्वल्स टू √3 वी एंगल ऑफ 30 डिग्री आपको कैसे मिल रहा है. ठीक है, दिस इज योर टूडेज वर्क, आज का असाइनमेंट. सेकेंड पॉइंट, वीबीसी. मेरा वीबीसी कहाँ पे है आपके पास, तो ये है मेरा वीबीसी. तो व्हाट माय वीबीसी इज वीबीएन माइनस वीसीएन. वीबीएन का वैल्यू है वीपी और वी एंगल ऑफ 120 डिग्री माइनस वीसीएन का वैल्यू है 1 एंगल ऑफ माइनस 240 डिग्री. ये जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ वैल्यू ऑफ √3 mod of VP angle of minus 90 डिग्री. ठीक है, एंड VCA. व्हाट इज माय VCA? तो ये वाला पार्ट, वोल्टेज बिटवीन योर लाइन वोल्टेज बिटवीन फेज ए एंड फेज बी. तो उसका वैल्यू है VCN माइनस VAN. तो -240 VP माइनस 240 एंगल ऑफ -0. तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी √3 VP एंगल ऑफ 120 डिग्री. आई वांट कि आप लोग ये पूरा सॉल्व करो एंड जस्ट लेट मी नो कि हाँ दिस वैल्यूज आर करेक्ट. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, ये कर लो. उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है. व्हेन यू आर ऑब्टेनिंग वीएबी, वीबीसी एंड वीसीए, तो उसके बाद हमें ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है. यहाँ पे भी आपके ये एक दूसरा पीडीएफ, 3 फेज सर्किट का एक दूसरा पीडीएफ है. आई शेयर दिस पीडीएफ आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर. सो व्हाट इट कम्स आउट टू बी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द लाइन वोल्टेजेस एंड लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेजेस आर रिलेटेड टू. अगर हम सिंपली हमें रिलेट करना है तो क्या रिलेट कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ही मुझे चाहिए. आई एम नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट आर माय फेज एंगल, कि वो VAB है जो भी मेरा लाइन वोल्टेज है उसका फेज एंगल क्या है. आई डोंट वांट टू नो अबाउट दैट. आई ओनली वांट टू सी कि ये जो मेरा फेज वोल्टेज है एंड लाइन वोल्टेज है उसका रिलेशन कैसे मिल रहा है, मतलब व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड. तो VL लाइन टू लाइन वोल्टेज इज √3 ऑफ whatever line to neutral voltage we are having. ठीक है, so this is my phasor diagram. ये मेरा फेजर डायग्राम क्या है, कह रहा है कि दिस इज माय रेफरेंस VAN, VBN एंड दिस इज माय VCN. मुझे चाहिए क्या, पहले तो VBA चाहिए. तो आई एम सिंपली गोइंग टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम. आई गेस दिस पार्ट यू पीपल हैव डन, कि हमने एक पैरेललोग्राम इसको एक्सटेंड किया था, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था एंड वी वर फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट वैल्यू. फेजर डायग्राम, विल इट बी पॉसिबल? एक पीपीटी है, पीपीटी में वी हैव डायरेक्ट. कैन यू सी दिस फेजर डायग्राम? VAN लिया है, VBN लिया है. Just we need to extend it and we need to draw a parallelogram. And this is my resultant making an angle of 30 degree. VBA making an angle of 30 degree with my reference part. Is it okay? यहाँ तक clear है? Okay. Ananta, any doubt you can just let me know. Yes, yes, yes. You need to find out the resultant. हम यहाँ तक अभी क्या करते हैं? What my resultant actually is? My resultant actually here represents my line voltage. Can you see? ये जो हम रिजल्टेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, विथ माय फेज वोल्टेजेस. ठीक है, ये जो रिजल्टेंट ऑब्टेन हो रहा है, व्हाट इज दैट एक्चुअली, दिस रिजल्टेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स माय लाइन क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ माय फेज क्वांटिटीज. ठीक है, ये रहा, देखो ये VLL इज इक्वल टू √3, पर उसको मैंने फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया. तो इसी के साथ VAN और VBN के साथ मिलके मेरे पास रिजल्टेंट एक ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज माय लाइन क्वांटिटी. इज दैट क्लियर अनंता? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? बाकी सब आप जहाँ पे जिसको प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट स्टॉप मी एंड टेल कि हाँ कोई प्रॉब्लम है. सी, ये देखो आपकी बुक में एक यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट आया, व्हाट, कि फिगर 2.12, दिस वन. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सिंपली हमने जो यहाँ पे पहले करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया था, ये देखो करंट का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आया. So one thing is very much clear from this, the current in any line is the same as the current in the corresponding phase. So for your star connection, one thing is very much clear कि आपका जो भी line current होगा, that will be equal to your phase current. ठीक है, आगे हमने एक point represent किया था in terms of current. कहाँ गया ये वाला point? तो ये वाला point आपकी बुक में अभी यहाँ पे represent हो रहा है कि अगर मुझे phase current find out करना है तो वो कैसे होगा, VAN divided by whatever impedance we are having. ठीक है, द सेम थिंग दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड. इसका हमें इवैल्यूएशन अभी कुछ नहीं करना है, वी आर ओनली कंसर्न कि व्हाट इज माय फेज करंट. फाइन.
अगर फेज करंट पता होगा देन वी कैन फाइंड, अगर स्टार कनेक्शन है, अगर फाइनल मुझे क्वांटिटी चाहिए होगी, आई नीड माय लाइन करंट आल्सो, तो लाइन करंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ योर स्टार कनेक्शन, माय लाइन करंट विल बी इक्वल टू माय फेज करंट. ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर टू यू पीपल? लाइन स्टार कनेक्शन लोड. Now okay, now can we jump to another topic, that is my delta connected load. कर सकते हैं हम लोग? Okay, so this is nothing but my delta connection. What does this delta connection? एक simple assume कर रहे हैं कि जो भी मेरा load है that is my resistive load. ठीक है, तो resistive load assume किया है. We'll see over here. यहाँ पे हमारे पास क्या है? See, a balanced delta connected load with equal impedance is shown in the figure. अभी एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि ये जो भी आ रहा है this is my load part. आगे यहाँ से जो भी हो रहा है लाइक जनरेटिंग स्टेशन में इट कैन बी अ डेल्टा कनेक्शन, इट कैन बी अ वाई कनेक्शन, बट वट एवर दैट इज कमिंग इट इज गिवन टू माई डेल्टा कनेक्शन. तो यहाँ से एक चीज क्या, एक हाँ यहाँ से एक चीज क्या हो सकती है कि आपका जो भी लाइन वोल्टेज होगा that will be equal to your phase voltage in terms of your delta connection. ये चीज हमने आगे बहुत पहले जब हम पढ़ रहे थे AC सर्किट जब हमने पढ़ा था, at that time we came to know कि whatever line voltage we are having line to line, it is the same as my phase voltage. Is that clear? ओके तो यहाँ पे VAB को क्या मार्क किया इन्होंने, VAB is angle 0 degree, VBC is this particular part, उसको लैग कर रहे हैं -120 डिग्री, एंड VCA तो -240 डिग्री. ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट. अभी हम वहां पे जैसे हमने करंट का वोल्टेज को एज इन फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे करंट को. तो व्हाट विल बी IAB, तो IAB मतलब दिस पार्ट, तो IAB विल बी I फेज एंगल ऑफ 0 डिग्री. ओके, IBC मतलब ये वाला करंट, तो IB -120 डिग्री, योर सेकेंड फेज इज एक्चुअली -120. ICA and I angle of 240. So this is my angle, whatever current, whatever we are getting. ठीक है, is that clear? Now suppose I need to find out my IA. तो IA मुझे कैसे मिलेगा? अगर मुझे IA फाइंड आउट करना है तो मुझे एक चीज ऐसी याद रखनी होगी कि IA is what we need to apply. हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे. तो IA और IAB and ICA. तो what will be my IA? IAB minus ICA. Coming to this part, चलो यहाँ पे देख लेते हैं. देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंपल, मुझे IA फाइंड आउट करना है. यू नीड टू अप्लाई KCL एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको KCL अप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे अप्लाई करो, एंड देन यू कैन सिंपली फाइंड आउट योर IA, IB एंड IC. ठीक है, सेम थिंग जैसे हमने स्टार कनेक्टेड लोड में देखा है, सेम थिंग यू आर गोइंग टू डू फॉर योर डेल्टा कनेक्टेड लोड. ठीक है, तो IA is equals to IAB minus ICA. What you want, if you want to find out IB, तो IBC minus IAB, and IC अगर मुझे चाहिए तो ICA minus IBC. ये सब चीजें आपको इस पर्टिकुलर फिगर से मिल जाएगी कि मेरा IA कहाँ पे जा रहा है. तो IA जब फाइंड आउट करना था तो ये 2 पॉइंट्स आ गए. अगर मुझे B फाइंड आउट करना है तो व्हाट विल बी दिस, IB फाइंड आउट करना है तो वन विल बी IBC एंड IBA. एंड अगर मुझे IC फाइंड आउट करना है तो वन विल बी ICA एंड IBC. इज दैट क्लियर? देखो, एंड योर फाइनल एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी सच कि कौन से वैल्यू में आएगा, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ √3 IP वॉट एवर फेज क्वांटिटी यू आर हैविंग एंड सम एंगल. तो किसी एंगल के साथ ये देखो, इसको कैलकुलेट किया तो ये क्या हुआ, I एंगल 0 माइनस ऑफ I एंगल 240. ठीक है, एंड उसको सिंप्लीफाई करो, यू आर गोइंग टू गेट दिस पार्ट. तो ये फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, IA इज इक्वल्स टू √3 I एंगल ऑफ -30 डिग्री. ये एक एंगल होगा -150 और एक 270 होगा या तो फिर 90 होगा. बेसिकली इट इज 90. ठीक है, इज दिस क्लियर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन एंड फेज क्वांटिटी क्या आ रहा है, अगर हमें रिलेट करना है तो लाइन क्वांटिटी इज √3 टाइम्स ऑफ फेज क्वांटिटी. इज दैट क्लियर?
हेलो, जब हम स्टार कनेक्शन पढ़ रहे थे तो स्टार कनेक्शन में योर लाइन वोल्टेज वाज √3 टाइम ऑफ योर फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, in terms of your current, तो line current is √3 in terms of delta connection, line current is √3 time of your phase current। ठीक है, I guess this particular part is clear। the same way जैसे हमने वोल्टेज का फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, we can represent here also। तो this is my phasor diagram। अभी एक चीज याद रखना कि जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा जो भी फाइनल वैल्यू आया था, दिस वैल्यू इज आई ए का जो भी एंगल आ रहा है दैट इज -30 डिग्री। तो मेरा रिजल्टेंट जो भी ऑब्टेन होगा दैट विल बी इन माय फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज IAB, दिस इज IBC, and whatever I am obtaining, whatever resultant I am obtaining, that is -30 degree lagging। Is this clear? See, हाँ, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा IB एंड यहाँ पे भी ऐसे ही होगा IC। सो यू नीड टू मेक श्योर कि ये जो आपको एंगल मिल रहा है, ये वाला कौन सा एंगल जो आपको मिल रहा है ना रिजल्टेंट रेफरेंस के साथ, दैट इज -30 डिग्री। एंड ये जो आपको IA जो भी मिल रहा है दैट इज इन योर फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? दिस इज योर स्टार कनेक्शन। ओके, जस्ट अ सेकेंड ना, किसी ने कोई मैसेज ड्रॉप किया है। प्लीज डोंट मैसेज द अटेंडेंस। ठीक है, सो फॉर द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल स्टार्ट विद कि मेरा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार का ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसे करेंगे, एंड व्हाट आर योर वाई एंड डेल्टा कनेक्टेड लोड। ठीक है, उसके बाद एक और चीज देखनी है दैट इज पावर रिलेशनशिप। अगर हम वाई कनेक्टेड लोड देख रहे हैं या डेल्टा कनेक्टेड लोड देख रहे हैं, दैट व्हाट विल बी माय पावर रिलेशन। ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हियर कम्स अनदर पॉइंट, एक दूसरा है, देखो वाई कनेक्टेड लोड। तो ये वाई कनेक्टेड लोड मेरा दिखता कैसे होगा, सिंपली वी हैव अ बैलेंस कंडीशन। यहाँ पे हमने एक सिंपल, अगर हम देख रहे हैं ना, तो दिस इज माय सिंपल बैलेंस कंडीशन। व्हाट यू डू इज योर बैलेंस पार्ट। ठीक है, यहाँ तक जितना भी हमने किया है, वट एवर स्टार कनेक्टेड लोड देखा या तो डेल्टा कनेक्टेड लोड, ये पूरा जो हमने देखा है दैट इज फॉर योर बैलेंस कंडीशन। इज दैट ओके? हेलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यू कैन जस्ट लेट मी नो कि हाँ कोई प्रॉब्लम है तो आई विल एक्सप्लेन इट। एनी प्रॉब्लम? अनंता, स्वीटी, अनंता, स्वाभामिका, कहाँ पे हो सब लोग? ओके, जस्ट